Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to Clack. So today we're going to discuss something very important and very unique that was recently, you could say, pronounced by the Delhi High Court, or you could say that the government actually informed the Delhi High Court that this particular concept in India has been gaining popularity and should be considered as a matter of a fundamental right. So I think if you have some basic understanding of our Indian constitution, you would know that under part 3 of the Indian constitution, we are guaranteed certain rights which are called fundamental rights. So these fundamental rights are very important for a citizen of a country to make sure कि जो भी उनके बेसिक राइट्स हैं या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टू लिव अ लाइफ इन अ डेमोक्रेसी दे आर इंश्योर्ड टू देम as well as the people who we choose to govern ourselves, basically the MLAs and the MPs, the parliament, the state legislature and so on, वो उस पावर का मिसयूज ना करें. ठीक है, तो उस पर एक बहुत अच्छा चेक बनाने के लिए वी हैव सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. नाउ हम देखते हैं कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स एज ऑफ टुडे, बट वो 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर देयर आर सर्टेन सब राइट्स जिसको सुप्रीम कोर्ट या कुछ हाई कोर्ट्स बार बार इंटरप्रेट करते रहते हैं. राइट, दिस इंक्लूड्स राइट टू इंटरनेट, दिस इंक्लूड्स राइट टू प्रिवेसी. So there is one such right that we're going to discuss about today is the right to be forgotten. Now what does this mean? Right to be forgotten का हिंदी में normal मतलब है कि मुझे भूल जाने का right. Now what does this mean? So this is a very interesting case. What happened in 2008 was there was this person who was an Indian but he used to stay in the US. तो वो US से 2008 में इंडिया आए थे and उन पर एक केस हुआ था related to the narcotics एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो NDPS एक्ट है हमारे पास, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. तो जो अभी रिसेंटली आर्यन खान का केस हुआ था उसमें उनको काफी बार हियरिंग पे जाना पड़ा था एंड ऑल ऑफ दैट, बट इन 2011 फाइनली ही वाज अक्विटेड बाय द कोर्ट. उनको छोड़ दिया गया था कोर्ट ने, राइट, एंड ही वेंट बैक टू द यूएस. वापस से यूएस चले गए थे वो. नाउ व्हाट हैपेंड इज ओवर दीस 10 years, ओवर द लास्ट 10 years ही फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द यूएस. जब भी वो कहीं एक नई जॉब के लिए अप्लाई करते थे उनका एक बैकग्राउंड चेक होता था विच इज लाइक नॉर्मल फॉर्मेलिटी. तो उस बैकग्राउंड चेक में पता चलता था, वो ऑनलाइन बहुत आसानी से आ जाता था, दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज अक्यूज्ड एट सम पॉइंट इन टाइम ऑफ यूजिंग दीज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. ठीक है, ऑल्दो उनको एक्विट कर दिया गया था, पर फिर भी वो जो जजमेंट था या जो ऑर्डर था वो ऑनलाइन सर्च इंजन पर कह लो या सोशल मीडिया पर कह लो, इट वॉज अवेलेबल क्वाइट इजिली. सो ही इन 2021 filed a case in the Delhi High Court stating that this is clearly against my right and I have a right to be forgotten. So right to be forgotten का मतलब होता है that the person or anybody has the right to get his or her personal information, it could be photographs, it could be any other information related to you, be removed from social media or any search engines. जैसे social media you could say Instagram, Facebook and so on, Twitter and all, है ना, या फिर आप सर्च इंजन के लिए कह लो गूगल, जो हम जनरली करते रहते हैं, राइट. तो उन पे रिमूव करने का भी आपके पास राइट है. So he said that since this particular judgment does not make any sense now, this is a clear violation of my right, so I have the right to be forgotten. Now the Delhi High Court stated that India में अभी तक ऐसा कोई right है नहीं. India does not have a right जिसमें किसी को और या फिर किसी और केस में बात हुई right to be forgotten की. तो ऐसा कुछ था नहीं अभी तक इंडिया में. So it took the help of a 2014 judgment from a Spanish court, जहां पर right to be forgotten की बात हुई थी, और वहां पर कहा गया था कि if with respect to a particular person there is certain information जिसको आप कह दो कि which is irrelevant, या तो वो irrelevant है या फिर वो misleading information है, तो उसको सोशल मीडिया या सर्च इंजन से हटाया जा सकता है, राइट. सो अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग तो ऐसे कह सकते हो कि इट वाज क्वाइट अ यूनिक केस. ठीक है, तो राइट टू बी फॉरगॉटन कम्स अंडर राइट टू प्रिवेसी. लेकिन यहां पर क्या हो गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट है या कोई भी कोर्ट होगा जो उस पर डिसीजन देगा, उसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे इनफैक्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स को बैलेंस करना पड़ेगा. पहला तो हम बात करें राइट टू प्रिवेसी की, कि वो जो इंसान था दैट पर्सन हैड द राइट टू प्रिवेसी. सेकंड, हम ये भी बात कर रहे हैं कि उसके पास जो बाकी जो सर्च इंजन वगैरह हैं या फिर जो जनरली जिन्होंने अपना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई लीगल चैनल चला रखा है, दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू. और जहां पर ये पब्लिक फोरम में हमें अवेलेबल है, सो पीपल ऑल्सो हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन. तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, राइट. तो ऑल्दो देयर वाज नॉट अ क्लियर डिसीजन इन दिस केस एट दैट टाइम, ठीक है, ऑल्दो कुछ सर्च इंजन को बोला गया था कि आप उनकी इंफॉर्मेशन हटा दो, बट एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया था. बट रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्चुअली अप्रोच्ड द दिल्ली हाई कोर्ट एंड काइंड ऑफ इन्फॉर्म्ड देम that this particular right
becomes a matter of fundamental right because ये इंडिया में जो पर्टिकुलर jurisprudence है इस राइट का वो अब इवॉल्व होता जा रहा है. ठीक है, इट्स बीन इवॉल्विंग ऑन अ डेली बेसिस, सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ फंडामेंटल राइट. सो यू कुड से दैट दिस इज अ क्वाइट कह सकते हो प्रोग्रेसिव तरीका है कि कोई इंसान अगर अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं रहना चाहता सोशल मीडिया पे तो वो हटवा सकता है, राइट. तो क्वाइट अ प्रोग्रेसिव मूव आई वुड से. इसके अलावा आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दैट देयर इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट्स बीन पेंडिंग सिंस 2019. तो जो जिस कमिटी ने वो बिल बनाया था दैट इज कॉल्ड जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमिटी. तो उन्होंने भी राइट टू बी फॉरगॉटन की बात की थी, राइट टू बी लेफ्ट अलोन की बात की थी उस पर्टिकुलर बिल में. ठीक है, तो वो देखते हैं उसके रिकमेंडेशंस कब इंप्लीमेंट होते हैं इंडिया में. तो राइट टू बी फॉरगॉटन या राइट टू बी लेफ्ट अलोन का ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान को हिमालय भेज दो या फिर उनको भूल जाओ. इसका ये मतलब है कि एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज नॉट हार्मिंग एनीवन और नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, दैट पर्सन शैल हैव द राइट कि वो कुछ भी करे. He or she has the right to do whatever they want with their life as long as they're not doing something illegal or harming the interests of others. So that's it about the session from my side. अगर आपको कुछ भी यहाँ पर डाउट है please feel free to mention in the comment box. उसके अलावा I think you would know that I've been teaching on Unacademy as well. So you can follow my live classes there as well. मैं रोज 9:15 PM पर एक फ्री क्लास करता हूँ और मैं उस क्लास के लिंक्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूँ. तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बोथ 12 minutes to CLAT एंड मालपानी अनअकैडमी. उसके अलावा आई टेक सर्टेन क्विजेस इन क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है एंड लीगल रीजनिंग एज वेल. ठीक है, मैं लीगल रीजनिंग की बहुत सारे कोर्सेज भी कर चुका हूं वहां पर एंड आई विल कीप डूइंग दोस कोर्सेज सो एज टू मेक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इजी फॉर यू. You can in fact enroll for a particular batch on Unacademy and prepare for CLAT 22 as well as for 23 and in fact for 24 as well. ठीक है, तो जो भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. यू कैन यूज माई कोड मालपानी और केशव लाइव एंड गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी. उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, सो यू कैन यूज दोज लिंक्स फ्रॉम देयर एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ CLAT जर्नी विद अस. So that's it about the session from my side. Thank you so much for attending. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.